بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. 8 مارچ ویمنس ڈے آج منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں خواتین کی جو سروسز ہیں, خواتین کے کام کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور انبیاء نے بھی خواتین کے پاس ہی پرورش پائی اور خواتین کا ایک بڑا کردار ہے سوسائٹی میں. ریلی اپریشیٹ آل آف یو, وہ خواتین جو اپنی گھر گھرستی میں یا کہ جابس میں یا اپنے کاروبار کو چلاتی ہیں, مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ زندگی گزارتی ہیں, اسلامی شرعی تقاضوں کو فلفل کرتی ہیں. ہماری مشعل راہ ہیں بی بی فاطمہ زہرا سے لے کے بی بی عائشہ صدیقہ, تو ان سب کو وہ فالو کرتی ہیں. اور دین اسلام بھی خواتین کو حقوق دیتا ہے. سورہ نساء اس کے لیے ہی اتری ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی اکنامکل کنڈیشن پہ. پھر ہم بات کریں گے بزنس مین کے ایشوز پر, ہو پائیں گے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. معروف بزنس مین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی بھی کئی کاوشیں ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, اور آپ آئی ٹی کے شعبے میں بھی ایک انقلابی اقدام لینے جا رہے ہیں. اسپیشل پروگرام آج ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کی آج برتھ ڈے بھی ہے, سالگرہ بھی ہے, تو آپ کو ڈھیر ساروں سالگرہ کی بھی مبارک ہے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ون اینڈ اونلی عابد مجید مرکری صاحب, بہت شکریہ سر عابد مجید مرکری صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کریں گے عابد مجید صاحب. خواتین ڈے آج منایا جا رہا ہے 8 مارچ, کیسا دیکھتے ہیں؟ آج وومنس ڈے ہے اور میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ کو خواتین کو بھی بلانا چاہیے تھا, بٹ چلیں آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اسلام نے ہماری خواتین کو ایک درجہ دیا ہے, ماں کے روپ میں, بہن کے روپ میں, شریک حیات کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, تو اس میں آپ دیکھیں گے تو کل کائنات آ جاتی ہے. ماں کے نیچے جنت ہے. اور جو خواتین کا کردار اس وقت بی بی فاطمہ سے لے کے بی بی ختیجہ سے لے کے حضرت عائشہ سے لے کے سب چیزیں ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہیں. تو آج ہم اگر اسی چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کسی چیز میں پیچھے نہیں. اور ماشاء اللہ آج کل جس قسم کے اکنامیکل حالات ہیں تو گھر کی خواتین اگر ہاتھ نہیں بٹائیں گی تو گھر کا نظام چلانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اتفاق کی بات ہے کہ ابھی ہم ڈیموگرافکس کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی جتنی بھی نرسنگ سیکٹر ہے یا کال سینٹرز ہیں تو اس میں میجر ٹیچنگ سٹاف ہے وہ سب خواتین پر منحصر ہے. تو وہ بھی اکنامک میں ایک اتنا ہی درجہ یا اتنا ہی فعال کردار ادا کر رہی ہیں جتنے مرد حضرات کر رہے ہیں. تو ان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو ہم بولیں گے خواتین پاکستان میں اس طرح سے فعال نہیں ہیں. ایون کے گاؤں دیہاتوں میں بھی جس طرح سے وہ محنت مزدوری یا زراعت سے منسلک ہیں تو وہ ہماری خواتین میں میرے حساب سے کسی بھی دنیا کی خواتین سے پیچھے نہیں ہیں. آگے بڑھاتے ہیں نا سلسلے کو. خواتین کو ہمارا سلام, آپ کی سروسز کو ہمارا سلام. اسی طرح ملک و ملت کی, اپنے خاندان کی حفاظت کرتی رہیں, ان کے لیے اپنی زندگی کو اسپینڈ کریں اور اسلامی شرعی اصولوں پر اپنی زندگی بسر گزر کرتی رہیں. اور یہاں کے جو مرد ہیں سوسائٹی کے وہ بھی آپ کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں, آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. عابد مجید صاحب, گیس 400% مہنگا اور پھر کہا گیا کہ سحری اور افطاری میں ملے گا, پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی. اس سے صنعت کو کتنا نقصان ہے؟ سر میری اتفاق کی بات ہے کہ میری 2 دن پہلے الحمدللہ ہمارا ایک وینچر کا آرگنائزیشن تھا تو جس میں سمجھیں کہ کراچی کے ٹاپ انڈسٹریلسٹ بھی تھے, چیمبر, فیڈریشن, سبھی حضرات تھے اور سبھی سے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. کچھ ایجوکیشن سیکٹر کے بھی لوگ تھے. مگر گیس کی شارٹیج ہے نا سر, ریئلسٹک بیس پہ کہ گیس کی پیچھے سے فراوانی نہیں ہے. اور میں آپ کو جو ابھی تک میری معلومات ہے کہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو ہمیں سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے یا کوئی ایسی امید بات بھی پیچھے سے نظر نہیں آ رہی. انڈسٹری میں 2 یا 3 دن 4 دن آپ گیس بند کر دیتے ہیں تو ہم پروڈکشن کیسے کریں گے؟ اگر ہم ایکسپورٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے ریونیوز آپ بڑھائیں تو ہم کیسے پروڈکشن کریں گے جب گیس بیسک چیزیں نہیں ہیں؟ الیکٹریسٹی کو دیکھ لیں, پیٹرول کو دیکھ لیں, گیس کو دیکھ لیں, یہ وہ چیزیں جو صنعت جس سے چلتی ہے. آنا صرف اس وقت اتنے مسائل انٹرنیشنل لیول پہ ہیں, کرنسی کے ایشوز ہیں, تو ان چیزوں پہ اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے سال 1.5 سال یا جو 6 مہینے ہمارے اکنامک پرابلمس ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے. تو حکومت کو فوری اقدام کرنے پڑیں گے گیس کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, ورنہ انڈسٹریز آپ کی آلریڈی اس تو بھاری بھرکم بل بھی تو آ رہے ہیں نا, ایک تو ہے نہیں اور پھر بل بہت آ رہے ہیں, تو یہ تو ناانصافی نہیں ہے. بالکل سر, دیکھیں نا ایک عام آدمی بجلی, گیس, اسکول کا بل اور پیٹرول سے بھاری نکلنے آ پا رہا. ابھی آپ دیکھیں رمضان کی آمد ہے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے برسوں اسی پیریڈ میں
सुपर स्टोर्स पे रश का ताना बना होता था, लोग अपनी परचेजिंग करते थे। अभी हम मार्केट से निकल गए तो वो रश नहीं है, हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं तो लोग उस तरह से परचेजिंग नहीं कर रहे थे। मायूसी है, बिल्कुल उस किस्म से परचेज परचेजिंग पावर हो रही नहीं है। हाँ, रोडों पे भी वो रौनक नज़र नहीं आ रही जो रमज़ान की नज़र आती थी। लोग उस तरह से, चेहरों पे भी मुस्कुराहट नहीं है, लोगों के दिलों में भी मायूसी है। लेकिन जिस शहर के हम बासी हैं, गनी परवर लोगों का शहर है, और आपको याद है कि हर साल मुखय्यर हजरात बाहर निकलते हैं, सड़कें क्या, गलियां क्या, चौराहे क्या, वो अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं। इस बार कैसा लग रहा है आपको? साजिद भाई देखें, वो तो एक अल्लाह का निज़ाम है ना। जब अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जैसे रमज़ान की आमद होगी तो लोगों का दिल नरम हो जाते हैं, तो लोग अपने तिजोरी के मुंह खोल देते हैं। वो तो एक अल्लाह ताला एक सिलसिला चलाता है, वो अल्लाह का निज़ाम है जो वो चलेगा। लोग देने वाले भी हैं और इतना देते हैं कि लोग दूसरी एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, वो तो अल्लाह ताला का काम होगा। बट एक जो हमें एक इंसानी नज़र से नज़र आ रहा है कि लोगों के जो माली मामलात हैं या रोज़गार है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस वक्त। आप कराची को पूरे पाकिस्तान से वो ना करें, क्योंकि गांव देहात वगैरह में जो गुर्बत का रेशो बहुत ज़्यादा है इस वक्त कराची की निस्बत। क्योंकि जो हमारे यहाँ लोग काम करने आते हैं, लेबर है या आपके जो हाउस घरों पे जो काम करते हैं, वो जो अपने हालात बताते हैं अपने गाँव देहातों के, तो हालात बहुत ज़्यादा अफसर हैं। हुकूमत को संजीदगी से लेवल से इन चीज़ों को अगर कल्टीवेट नहीं करेंगे तो लोग आगे बहुत परेशानी में आएंगे। टेक्सटाइल के शोबे को क्या क्या चैलेंजेस हैं, आगे फ्यूचर इसका क्या देख रहे हैं? देखिए, टेक्सटाइल को जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है ना, वो तो यूटिलिटीज़ का है, गैस, बिजली, पेट्रोल। इन चीज़ों से हम बाहर आएंगे तो हम लोगों से ऑर्डर ले सकेंगे। देखिए, अनसर्टेनिटीज़ जब तक होगी तो इंडस्ट्रीज ना पैसा लगाएगा, ना वो उस किस्म से मेहनत करेगा, बस वो अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स को मीट करने के लिए चलाता रहेगा, ना खुल के काम करेगा ना बंद करेगा। तो वो इस सिचुएशन में खुल के काम नहीं हो सकता सर। फिर ये जो FPCCI से लेके KCCI जो बिजनेस हब हैं, इनका किरदार कैसा देख रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि चेंबर हो या फेडरेशन हो या और कोई NGO हो या और कोई बिजनेस फोरम हो, वो तो लोग अपनी बात कहते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। बात दरअसल ये है कि हम पॉलिसीज़ को एक तसलसल के साथ उसको अपनाएं। वंस अगर पॉलिसी बन जाती है ना, तो अगर पॉलिसीज़ में कोई फॉल्ट है उसको निकालें और फिर एक तसलसल के साथ 5 साल 10 साल 8 साल 6 साल पे एक मुसलसल उसको लेके चलें, ताकि उसके गुड्स और बैड्स कौन सा हमारे सामने आ जाए। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से मसाइल ये है कि साजिद भाई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे साजिद भाई गए आबिद भाई ने अपनी पॉलिसी बना दी, तो उससे मुल्क और कौम का बहुत बेहताशा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई पॉलिसी अच्छी भी है तो उस तसलसल में नहीं है, अगर कोई पॉलिसी बुरी है अच्छी है, उसका एक टाइम पीरियड के बाद पता चलता है ना, इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे जाके पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो जब तक ग्राउंड रियलिटी पे पॉलिसीज़ नहीं बनेगी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हम इसी तरह से चलते हैं। नई आने वाली हुकूमत बन गई है, एक चौथी बार असेंबलियाँ, पार्लियामेंट फिर से बहाल हो गए, अब कानून साजी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, 8 अरब की IMF से भी हमें किस्त लेनी है। इसके बाद कुछ बेहतरी, कुछ अच्छी खबरें? देखिए, हमेशा मैं तो पॉजिटिव बात करता हूँ, आपको मेरा पता है कि जो हमारी हुकूमत बनी है या आएगी, अल्लाह ताला कुछ ऐसे असबाब बनाए कि हुकूमत के लिए कुछ आसानियाँ हो जाएं, जो बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आसानियाँ नहीं हैं। क्योंकि जिस चैलेंजेस को उन्होंने फेस करना है, रियलिटी ये कि बहुत मुश्किल हालात हैं। तो उस मुश्किल हालात में यकीनन वो मुश्किल फ़ैसले करेंगे, जो बर्डन इन दी एंड पब्लिक पे आएगा तो पब्लिक और परेशानी में आएगी। अब चीज़ें चाहे IMF की बात कर लें तो IMF भी देखें ना, IMF ने भी वो शराइत ही बनवानी है जो इससे उनकी रिकवरी होगी। रिकवरी करने के लिए उन्होंने वही बोझ आखिर में पब्लिक पे डालना है। ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल्स हैं हमारे, चाहे वो हुकूमत हो चाहे IMF हो, वो उसका बर्डन आखिर में पब्लिक पे आना है। जो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, या मैं आपको कहूँ ऑक्सीजन है, तो हम अपने अखराजात या इंपोर्ट की चीज़ों को कम करें, हुकूमत अपने अखराजात को कम करें, हम अपनी जो अयाशियाँ हैं उसको कम करें, तो कुछ हो सकता है। आबिद मजीद, अगर बिजनेसमैन ना होते तो क्या होते? अगर मैं बिजनेसमैन ना होता तो क्या होता, तो मैं शायद कोई क्रिएटिव आर्किटेक्ट या इस किस्म का क्रिकेटर होता, सिंगर होता, आर्किटेक्ट होता, मैं सियासतदान। अच्छा, आर्किटेक्ट होते हैं। समाजी काम, स्पेशली आपका ताल्लुक भी मेमन कम्युनिटी से है, आपकी कम्युनिटी के बड़े समाजी काम हैं जिनको कौम अप्रिशिएट करती है, और आप लोग सरे फहरिस्त हैं, स्पेशली कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहूँगा। कैसा देखते हैं, क्या जज्बा है कि सही पैसा सही जगह खर्च करना? देखिए,
वैसे तो हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट मेमनों की ख़ास बात ये है कि ये अल्लाह की राह में जब खर्च करते हैं ना, तो ये सोच के करते हैं कि इसका रिटर्न अल्लाह देगा। तो उसमें भी इनकी कहीं ना कहीं बिजनेस की सोच होती है कि एक खर्च करो 27 मिलेगा या उससे क्या ज़्यादा बात है। मिलेगा। हाँ, तो अल्लाह ये से बिजनेस करते हैं वो। माइंड लोग बिजनेस मैन हैं, तो जब वो अल्लाह से भी तिजारत करते हैं तो उसमें वो नफ़ा देख के ही करते हैं, सीधी सी बात तो ये है। हाँ। अब वो नफ़ा बोलते हैं यहाँ मिले या वहाँ मिले, नहीं, मिलना तो है। आबिद मजीद, आप खुद एक टेक्सटाइल रन करते हैं, मरकरी इंडस्ट्रीज़ के आप सीईओ हैं। हर जगह पे स्पॉन्सर की वो जो बनती हैं फ्लैग्स, होर्डिंग्स, उन पर आपके लोगोज होते हैं। तो ये इतना आप तकसीम करते हैं, अल्लाह इतना देता है, या क्या एम्स हैं, क्या सोच है कि यार सर, जहाँ मुल्क की मुझे- बात आती है आबिद मजीद पेश होते हैं? एक दीनदार आदमी ने मुझे कहा है कि अल्लाह ताला का एक कानून है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना उसको तकसीम करना शुरू कर दें, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो इज़्ज़त है। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपको अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त उतनी बढ़ा देगा। अगर आप रिस्क बांटोगे या अपने तोहफे तहफ़ बांटोगे तो उसकी इन दी एंड वो अल्लाह ताला आपके घरों में वो उसकी रहमतें ले आएगा। तो जहाँ तक आप मरकरी के गिफ्ट के स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, तो हम अल्लाह ताला से ये ईमान है हमारा कि हम जो लोगों को देते हैं, जिन लोगों को हम फैज़ियाब करते हैं, उनकी कोई ना कोई दिल की किसी न किसी कोने में दिल खुश होगा या कोई दुआ होगी, तो हमारे दिन और दुनिया दोनों में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये सिलसिला मैं तो काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, कई सालों से, और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अल्लाह पाक बरकत दे, बहुत अच्छा काम है। बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं कि यार आबिद साहब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, ऐसा ही है, नहीं, अच्छी बात है सर, मेरे से भी ज़्यादा लोग करते हैं, है ना? और हमने भी किसी को देख के इंस्पायर होके हमने किया। अगर हमारे बाद वाले अगर हमें देखेंगे, देखिए रोल मॉडल्स तो हमारे कुछ आगे वाले हैं, हम किसी के बन जाएंगे। तो हमने भी किसी को देखा है बांटते हुए। हम इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमसे ज़्यादा बांटते हैं लोग, हमने उनको देखा, कुछ हमको देखेंगे। तो ये मैंने ये कहा ना, देखिए अच्छा काम अल्लाह करवाता है, अल्लाह ताला लोगों को मुंतखब करता है। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम अच्छा काम कर सकें। वो अल्लाह अपने बंदों को चुनता है कि आज साजिद भाई से ये काम करवाना है, आज आबिद से ये काम करवाना क्या है। बात है। AUC टेक्नोलॉजी, ये क्या है आबिद मजीद साहब, जिसकी आप लोगों ने अभी लॉन्चिंग की है? चौधरी साहब भी आपके साथ थे, तो क्या आप लोग ऐसा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ला रहे हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी इसकी रोशनी की किरणें फैलें। देखिए, AUC एक फॉर्म है। असदुल्ला चौधरी जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम 3 दोस्त हैं जिन्होंने ये एक विज़न बनाया। इसमें असदुल्ला चौधरी है, अनवर उस्मान है और मैं हूँ। तो हमारी एक सोच है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी चीज़ें नवाजी हुई हैं। तो हम अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें करें जिससे हमारी कौम के बच्चों को या कौम को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलें जिसके हमारी आने वाली नस्लें कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो असदुल्ला चौधरी इज़ अ बिहाइंड द AUC, और मैं और अनवर उनके साथ इस चीज़ में खड़े हुए हैं। कुछ एक्सपर्टीज़ हमारी हैं, बट जो IT एक्सपर्टीज़ हैं वो ऑल ऑफ असद की हैं। अब हमने किया ये है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट और केमिकल यूनिवर्सिटी फिनलैंड से एक मुआहिदा किया है। रियली अप्रिशिएट जी, तो उससे जो माइक्रोसॉफ्ट के स्किल जॉब प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया वगैरह में भी लॉन्च हुए हैं, जो बांग्लादेश वगैरह में भी लॉन्च होने जा रहे हैं, वो हमने ये 2 दिन पहले बुध के दिन हमने इसका एक लॉन्चिंग सेरेमनी की और हमने उनसे लाइसेंस लिए हैं। उस कोर्सेज़ के थ्रू हमारे बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग लेंगे और उसकी सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट खुद देगी। उससे बेनिफिट ये होंगे कि कुछ 60 कंपनियां हमसे ऑलरेडी मुंसलिक हैं जो इस सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगी और वर्ल्ड वाइड जॉब प्रोवाइड करेंगी। जी, और वर्ल्ड वाइड जो माइक्रोसॉफ्ट से अटैच कंपनी है। तो ये कितने एक्सपेंसिव कोर्सेस हैं सर? इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन एक्सपर्ट में कुछ 75,000 रुपये स्पार्क रुपीज़ पे बनती है, जिसमें 6 कोर्स शामिल हो जाते हैं। अब ये कोर्सेज की कुछ डिटेल ऐसी है कि जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, बट देखिए हमारे यहाँ डिग्रीज़ तो बहुत मिल रही हैं। इस वक्त डिग्रीज़ के साथ साथ लोगों को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जो मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से इन लोगों से मिला हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं, जो केमिकल यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन आई है दुबई से, तो मैं उनसे ये सीखा हूँ क्योंकि हमारी फील्ड, मेरी ज़ाती फील्ड कोई IT की नहीं है, मैं तो मार्केटिंग या बिज़नेस से कम। तो पहले मैंने इन चीज़ों को समझा। मैंने कहा भाई पहले आप हमें बताएं, फिर हम चीज़ को बेचने जाएंगे या किसी को समझाने जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी NGOs भी शामिल हैं। ऑल पाकिस्तान वेमेन को भी हमने ऑन बोर्ड लिया, MLF को भी हमने ऑन बोर्ड लिया। माशाल्लाह कराची चैम्बर के ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इफ्तिखार शेख साहब, फेडरेशन से ज़करिया उस्मान साहब, आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम साहब, माशाल्लाह इन सब ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे भी सबको शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस
भरपूर मसरूफियत में भी हमारे लिए 3 घंटे निकाले और सब ने भरपूर किया। वो भी संजीदा थे कि यार इस प्रोफेशन से हमारी कौम, हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आईटी की फील्ड में हम आगे जाएं। देखिए अभी टेक्सटाइल हो या कंस्ट्रक्शन हो या और कोई फील्ड हो, सब इस वक्त बुरी तरह से इफेक्टेड है। अगर रेवेन्यू लाना है हमें तो आईटी वो वाहिद शोबा इस वक्त बचा हुआ है जो दुनिया से हमारे लिए रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। जो डॉलर का हमें फुकदान है हम आईटी बिजनेस से कलेक्ट, और हमारे जो ज़हीन बच्चे हैं जो दुनिया में जाके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल है। अगर हम छोटे छोटे आईटी टावर्स बना के रखे हैं, आईटी पार्क्स बनाए, नेटसेप के डायरेक्टर से भी हमारी ऑन बोर्ड बात हुई, माशाल्लाह उन्होंने भी शिरकत की, उन्होंने भी अपनी खिदमत को हमको भरपूर साथ देने का वादा किया। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें बच्चों की सूरतों में मौजूद हैं। जगह हमारे 70 से 60% जो टोटल आबादी का पोर्शन है वो यूथ का है। तो अगर हम आईटी से मुंसलिक हो जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख उस तरफ मोड़ दें, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे एनजीओज हों, चाहे डोनेशंस वाले हों, तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल में हम कोई ऐसे रेवोल्यूशन ना कर पाएँ जो हमारी इकोनॉमिक्स को फ़ायदा पहुँचाएँ। 3 नाम मैं आपके आगे रखूँगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से तीनों का पेशा उनका वही है और तीनों आपकी कम्युनिटी के हैं। आबिद मजीद नज़र साहब की नज़र में आपकी एक्सपीरियंस से या आप उनसे मुतासिर उन 3 शख्सियत में से एक का आपने नाम लेना है कि यार ही इज़ द बेस्ट। सबसे पहले पर हैं हमारे पास मोहम्मद अल्ताफ़ ताई साहब, आप चेयरमैन हैं मोहम्मद ताई बिल्डर्स के। सेकंड पर हमारे पास चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब। थर्ड पर हमारे पास इरफान वाहिद साहब। सर आपने मुझे वो क्वेश्चन में डाल दिया है जिसका एक जवाब मैं आपको एक बहुत आसान लफ्ज़ में देखें। अल्लाह ताला ने हर आदमी के अंदर एक खूबी रखी हुई है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। अगर आपके अंदर कोई खूबी है तो कोई खामी भी होगी। अब ये तीनों है ना, ये हीरे हैं, डायमंड्स हैं ये तीनों। तो किसकी डायमंड की किसी में कोई रोशनी कम नहीं है ना चमक कम है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों सबसे बड़ा डायमंड कौन है? सब बड़े डायमंड। अच्छा, सब बड़े डायमंड है माशाल्लाह। ये 3 नाम जो आपने लिए हैं, हाँ, ये सभी, बल्कि मैं आपको सही बात बताऊं कि हमारे जो लोग हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों, चाहे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हों, देखिए उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम बनाया है। क्या बात। अल्लाह का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जिसको कोई मुकाम दिया है ना, ये नाम दिया उसकी मेहनत पे दिया है। क्या बात है। जब तक आदमी मेहनत नहीं करता, जब तक वो ठोकरे नहीं खाता, जब तक वो मार नहीं खाता, कोयले से डायमंड नहीं बनता वो। तो ये नाम हो या इससे भी बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने पीछे कुछ किया होता है जब ये ऊपर बनता है। आबिद मजीद साहब की पाकिस्तान में कोई फेवरेट शख्सियत जिससे आबिद मजीद मुतासिर हुए हों कि यार कमाल है, चाहे वो खातून हो या जेंट्स हो? देखिए मेरे नज़र में 2-3 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मुतासर हुआ हूँ। एक तो मैं अपने वालिद साहब से हूँ, उनकी मेहनत ज़बरदस्त से मैं मुतासर हूँ, जिनसे मैं मेहनत का जज्बा सीखा था। अगर मेरे वालिद साहब में कोई बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं तो वो मेहनती हैं, तो मेहनत मैंने उनसे सीखी। कुछ विजनरी लोग होते हैं, तो मैं अपने चचा से भी कुछ सीखा जो मरूम है वो। अभी आज की आप बात करें तो ज़ुबैर मोतीवाला वो शख्सियत हैं जिनका विजन है, जिनके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बहुत कंट्रोल है, जिनकी इकोनॉमिक्स मालूमात बहुत अच्छी है। तो वो बात को बहुत धीमे अंदाज से बात समझते हैं और फिर धीमे अंदाज से लोगों को कन्वर्ट करते हैं और परसीव करके लोगों को समझाना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल तरीन वो काम है। तो हमारे पास देखें बहुत से लोग हैं माशाल्लाह। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आप ये सोचें कि कुछ ऐसे फील्ड में भी लोग हैं जिनको हम इतनी फेम नहीं है, मगर उन्होंने जो काम या खिदमत दी हुई हैं तो वो उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। ईदी साहब हैं। क्या बात है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके लिए हम मशले राह हैं। हाँ। वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड सीज़न 5 हम लोग करने जा रहे हैं। 5वां साल है। हर साल हम लोग चुनते हैं किनको तो हम दोबारा देते हैं क्योंकि हम देखते हैं नहीं यार ये डिज़र्व हैं, इन लोगों को बुलाएं, ये इस मुल्क का असासा है, इनके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, ये अपनी इंडस्ट्रीज़ को बाहर नहीं ले जाना चाहते चाहे कैसे भी हालात हों। उनका ये विज़न है कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इसी मुल्क में हो। कैसे देखते हैं हमारी सर्विसेज को? देखिए माशाल्लाह आपने एक प्रोग्राम का नाम रखा है तुमसे है पाकिस्तान, और आप मुसलसल इस प्रोग्राम के अलावा एक अवार्ड शो करते हैं जिसमें सब कारोबारी शख्सियात, सोशल समाजी लोग आते हैं। अब आपकी जो काविश है ना, हम जो उससे मुतासर हैं
کہ آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں کچھ نمایاں کارکردگی کی ہو بشیر جان محمد صاحب کو پچھلی بار اور ان کو حکومت کی سطح پہ بعض اوقات آدمی نہیں ریکٹیفائی ہوتا بتائیں تو آپ نے ان کو بھی نوازا ہے ایوارڈ سے. لاسٹ سے آپ مسلسل کوئی چوتھا یا پانچواں سال ہے سر یہ سیزن 5 کرنے جا رہے تو ہیں. میں نے یہ مسلسل دیکھا کہ ان لوگوں کو آپ سامنے لاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم نہیں ہوتا, تو آپ ان کو بھی آگے لاتے ہیں. کہ دیکھیں اپریسیشن تو ہر سطح پہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اگر آدمی کے اندر کوئی کوالٹی اور اس کو اپریسیشن ملتا ہے نا تو اس کوالٹی کے اندر اس کی جان پڑ جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا کہ آپ ان لوگوں کو بھی لاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. بیک گراؤنڈ والے لوگ تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتے ہیں, بٹ آپ ان کو نظر انداز نہیں کرتے جن کے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اور وہ ایک کاوش ہے آپ کی, اور اسی وجہ سے بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ سے منسلک ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ غریب کو آگے رکھیں گے تو امیر خود آپ کے پیچھے آئے گا. یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ غریبوں کے پیچھے جاؤ, امیر آپ کے پیچھے آئے گا. کیا بات ہے. لاسٹ میں چاہوں گا کہ چونکہ آج آپ کی سالگرہ بھی ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں شہروں میں, ملکوں میں, جن کی سالگرہ مہینوں چلتی رہتی ہے. بہت سارے لوگ بلا کے ان کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. یو آر ون آف دیم. ہم بھی بہت کم لوگوں کو شرنک کرتے ہیں, بلاتے ہیں, سرپرائز کرتے ہیں. ہم بھی عابد صاحب کا کیک کاٹیں گے, لیکن پروگرام کے فوراً بعد کیسا محسوس کرتے ہیں, کیا فیلنگس ہوتی ہیں عابد صاحب؟ میری سالگرہ ویسے آج نہیں, 2 مارچ سے ہے, تو ماشاءاللہ وہ سلسلہ سے چل رہا ہے سلسلہ. سر میرے لیے آج آپ کو میں نے بلایا, آپ کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا, تو میں تو آج مناؤں گا آپ کی سالگرہ. سر یہ آپ کی بڑی کرم نوازی اور عزت افزائی کہ آپ ہماری فیل کیسا کرتے ہیں آپ, کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ دیکھیں سچی بات تو بتائیں کہ ہم نے ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ہم سالگرہ منائیں, سچی بات ہے, بٹ لوگوں کی محبت کا ایک وہ ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں تو ایک سیلیبریشن ہو جاتی ہے. باقی دیکھیں ابھی تک میں لوگ بلا کے ہوتے ہیں نا, بلا کے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, اپنی آئی ڈیز پر آپ کو لگاتے ہیں, تو یہ پراؤڈ کی بات ہے کہ چلے ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کہ ایک فیل ہوتا ہے کہ ساجد بھائی نے آج کیک کاٹا, کل ایک اور میڈیا والے دوست نے رات کو بلا کے کاٹا, تو دیکھیں یہ تو ایک محبت ہے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بٹ ایسا کبھی کبھی میں انڈیویجول لیول پہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کیا جتنی لوگ ہم کو محبت دیتے ہیں. یہ میری انر فیلنگ ہے. اور اگر اور کوئی بڑی اچیومنٹ لے لے تو لوگ تو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. بالکل. تو ایسی کوئی ابھی ہم سے کارنامہ نہیں ہوا کہ لوگ جو ہم کو کاؤنٹر عزت دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوئی نہ کوئی چیز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے. کیا بات ہے. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.